आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना. Praise God for the wonderful time as God has given to us. और प्रभु का धन्यवाद उस सुंदर समय के जो उसने हमारे जीवन में दिया. The Bible says, और वचन कहता है Matthew chapter 7, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 7 the verse 24. और इसका 24वां पद कहता है Therefore, everyone who hears these words of mine and put into the practice is like a wise man who built his house on the rock. इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया. What the Bible says. और बाइबल क्या कहती है? Therefore, everyone who hears these words, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, the Bible clearly says, और बाइबल साफ-साफ कहती who है, hear the word of the God, और जो कोई परमेश्वर का वचन सुनता है, you want to put the word of the God inside of your heart. और जो कोई ये वचन सुनते हैं उसको इस वचन को अपने हृदय में रखना. Whenever you hear the word of the God, it's going to be stay inside of your heart. और जब भी आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो उसको आपके जीवन में रहना If है. it is not staying inside of your heart, there is something problem in your spiritual life. और अगर ये वचन आपके हृदय में नहीं रुकता तो जरूर आपके जीवन में, आपके आत्मिक जीवन में कोई परेशानी है. Some people will say, I did not understand the Bible. और कुछ लोग कहते हैं कि मुझे बाइबल समझ नहीं आती. I did not able to memorize the Bible words. और कुछ लोग कहते हैं कि मुझे याद नहीं रहता कि मैंने क्या पढ़ा. I was get lazy in to read the और Bible. मुझे वचन पढ़ने में आलस आता है. Some people will say the different things, how they are escaping from this Bible. और बहुत सारे अलग-अलग लोग बहुत सारी अलग-अलग बातें करते हैं कि वो कैसे वचन से भाग रहे हैं. Why they are sharing like that way? और वो ऐसी बातें क्यों कहते हैं? Because the presence of the God is not inside of the life. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में नहीं. If you love the God truly, you will love the God truly. Sure, the word of the God will stay upon inside of your life. अगर आप परमेश्वर से सच्चा प्रेम करेंगे और सच्चाई से उसके वचन को सुनेंगे तो जरूर परमेश्वर का वचन आपके हृदय में रुकेगा. So whatever you read in the Bible, it should stay inside of your heart. और आप जो कुछ वचन में पढ़ते हैं उसको आपके हृदय में रहना आवश्यक है. When you read the Bible, God will show more things about the eternal life and the kingdom of the God. और जब आप वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर बहुत सारी बातें जो आपके अनंत जीवन और स्वर्ग से जुड़ी हुई हैं आपको बताता है. So when you come to the presence of the God, your heart want to open in the front of the God. और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो आपका हृदय परमेश्वर की उपस्थिति में खुलना आवश्यक है. But so much of people right now, nowadays, they're holding their heart. They're making the heart in the hardest area. और बहुत सारे लोग आज अपने हृदय को अलग करके रखते हैं और वो अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं. Or your heart is like a desert. क्या आपका जो हृदय है वो एक रेत के समान है? Or your heart is like an ugly. और क्या आपका जो हृदय है वो झुंझलाने वाला है? Or your heart is covered with the wickedness and the evil and the sinful thing. और क्या आपका हृदय शैतान की शक्तियों से और उन पापों से और बुराइयों से घिरा हुआ है? How is your heart? आपका हृदय कैसा है? It's your heart is filled with the word of the God. अगर आपका हृदय परमेश्वर के वचन से भरा But the हुआ Bible says, तो वचन क्या कहता है? who hear the word of the God, it should be staying in the heart. और जो कोई परमेश्वर की बातें सुनकर उन्हें मानता है, Not only hearing जो सिर्फ सुनता नहीं what है, the Bible says और वचन जो कहता है and put them into practice. और जो उनको मानता भी है. So whatever the words you're hearing from the God, you want to put that inside of your practice. और जो कुछ भी आप सुनते हैं उसको उसे आपको उस चीज को अपने कार्य में लाना जरूरी है. Who do the true things, they are the wise man. और जो ये काम करता है वही बुद्धिमान मनुष्य है. When you read the verse, जब आप ये वचन it पढ़ेंगे want to stay in your heart. आपके हृदय में जब वो रहेगा, You want to read, you want to work in that. आप जो पढ़ेंगे आपको उसमें काम करना You है want to make in the practice in that way. और आपको उसे एक व्यवहार में लाना है. When you do that, जब आप ऐसा you करेंगे, are the wise people आप बुद्धिमान मनुष्य who होंगे. build this house in the rock. तो आप वो बुद्धिमान
व्यक्ति होंगे जिसने अपना घर चट्टान पर If बनाया। you do in that way, अगर आप इस तरह करेंगे what will happen क्या होगा? and what the Bible और says, वचन क्या कहता है? Matthew 7 मत्ती 7 अध्याय 25 और says, उसका 25वां पद कहता the है, rain came down, the stream rose, and the wind blew and beaten against that house. Yet it did not fall, because it had the foundation on the rock. और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। So if your house, if your spiritual life is built in the rock, अगर आपका घर और अगर आपका आत्मिक जीवन चट्टान पर बना हुआ है in the heavy rain, और बारिश आएगी, whatever the problem come, कोई भी परेशानी आएगी whatever the stream rose against you, और चाहे कोई बाढ़ भी आ जाए, what the wind blow against you, चाहे आंधियां चले, never you fell down. आप कभी गिरेंगे नहीं। Because the word of the God is inside of your heart and you are practiced the word of the God. क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में है और आप उस पर मनन करते और चलते हैं। Your house was built in the rock. तो आपका घर चट्टान पर You are the wisest people. आप बुद्धिमान मनुष्य So हैं। my dear family, you want to build your home in the rock. और मेरे प्रिय परिवार, आपको इसलिए अपना घर चट्टान पर बनाने की आवश्यकता है। So much of house people, so much of family is shaking and facing the trouble in their life. और बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों को झेल रहे हैं Because they are worried. क्योंकि उनकी चिंता की What वजह happened today? आज क्या हुआ, What happened tomorrow? कल क्या होगा, What will happen coming days? और आने वाले दिनों में क्या होगा। Every family is struggling. और हर एक परिवार इस तरह से जूझ रहा है। Because through my phone call, I get lot of prayer calls. और मेरे फोन पे बहुत सारे प्रार्थना निवेदन आते हैं Everyone share different prayer points to pray. और अलग-अलग लोग बहुत सारे अलग-अलग प्रार्थना के निवेदन मुझे Today I got one phone call for the prayer. और आज मुझे एक कॉल आई थी जो प्रार्थना He's की from the थी। South India. और वो साउथ इंडिया He से was living in the Pondicherry. और वो पुडुचेरी में रहते हैं And he is a construction worker. और वो कोई कंस्ट्रक्शन का काम And करते he हैं। told me, और उन्होंने मुझसे कहा, brother, pray for me. भैया मेरे लिए प्रार्थना I करो। asked to that man, मैंने उससे पूछा, why I want to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना क्यों करूं? What is the prayer request? क्या आपका प्रार्थना करने He के लिए? told that उन्होंने कहा, I was in 3 lakhs debit. और मैं 3 लाख के कर्ज में हूँ I want to pay back the 3 lakhs. और मुझे 3 लाख रुपए वापस Every day from the bank, the people are coming asking that money. और हर एक दिन बैंक से लोग आकर मुझसे पैसे की डिमांड करते हैं Whenever they came to my home, I have no peace. और जब भी वो मेरे घर पे आते तो मुझे कोई शांति नहीं होती I है। plan to run away from my home. और मैंने सोचा है ना कि मैं मेरा घर छोड़ के भाग I जाऊँ cannot pay back the 3 lakhs. क्योंकि मैं 3 लाख वापस नहीं This दे is my सकता। situation. और ये मेरी परिस्थिति I है। fell down. मैं नीचे गिर I गई got weakness. और मुझे कमजोरी I don't know what to और do. मुझे समझ नहीं आता मैं I क्या asked that करूं। man, मैंने उससे पूछा, why you take 3 lakhs debit from the bank? तो आपने 3 लाख उधार क्यों लिया? He told me उन्होंने मुझसे 6 कहा months back, 6 महीने I पहले got that jaundice. और उनको ना कोई बीमारी हो गई। So I went to the hospital. मैं हॉस्पिटल गया So 6 months, no job. और 6 महीने तक मेरे पास कोई जॉब So I take the money from the bank. तो मैंने बैंक से ना उधार I लिया spend for my family, for me, and for my treatment. और मेरे ट्रीटमेंट के लिए, मेरे परिवार के लिए मैंने इस पैसे को इन्वेस्ट किया, But I cannot pay back right now. लेकिन अब मैं इसको वापस I नहीं was कर सकता। working, मैं काम कर रहा but हूँ, the work is getting a limited amount of salary only. लेकिन जो काम मैं करता हूँ उससे मुझे बहुत ही कम पैसा With a limited amount of the salary, now I can able to survey my family और only. इस थोड़े पैसे में मैं मेरे परिवार को नहीं चला पा रहा I cannot do anything. और मैं कुछ नहीं कर This is पा my रहा। situation. ये मेरी सिचुएशन What shall I do? मैं क्या करूँ Who can deliver my life? और मुझे कौन छुटकारा Who देगा? can change my मेरा life? जीवन कौन बदले? I told to the brother, मैंने उस भाई से कहा submit your prayer to the God. और अपने इस प्रार्थना को प्रभु के हाथों में Submit your prayer points to the God. और अपने प्रार्थना निवेदन प्रभु को दे God will open the way for you. और प्रभु आपके लिए रास्ता खोले। Today, so much of people are facing this financial और problem बहुत सारे लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को देख because रहे हैं, they did not think the wise way. क्योंकि वो बुद्धिमानों की रीति से नहीं When you सोचते। take the money from the bank or you borrow the money from any people, you want to know, I can able to pay back or not, I want to think. जब आप किसी व्यक्ति से
से या किसी बैंक से उधार लेते तो उससे पहले आपको ये सोचने की जरूरत है कि क्या आप इसको वापस दे पाएंगे या नहीं। But when the problem comes, that time only we are thinking, why we borrow the money, why we get the money from the bank. और जब परेशानी आती, जब हम पैसा नहीं दे पाते, तभी हम सोचते हैं हमने क्यों पैसा लिया उधार Because लिया। God gives the knowledge to think, but we are not thinking in that time. क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है कि हम उस रीति से सोच सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। Because in that time of the struggle, our mind, our heart was holded in that area only. क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हमारा हृदय, हमारा दिमाग उसी परिस्थिति के बारे में सोच रहा But होता what है। the Bible says, वचन क्या कहता है? whatever you hear from the word of the God, put in your heart. और वचन कहते हैं कि जो कुछ तुम वचन से सुनते हो उसको अपने मन में भी रखो, Put it in the practice. उसको मानना सीखो। When the trouble comes, never it will attack your life. और जब भी परेशानी आएगी ना, तो वो आपकी जिंदगी को कभी भी परेशान नहीं कर पाएंगे। So you will be a wise man. तब आप एक बुद्धिमान मनुष्य हो। And the same Matthew 7, the verse 26 says, और यही मत्ती 7 अध्याय का 26 पद कहता है, but everyone who hears this word of mine and does not put them into the practice, it's like a foolish man who built his house on the sand. परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर चलता नहीं, वे उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। Reading the Bible is not a matter. सिर्फ वचन पढ़ना ही काफी नहीं, Going to the church is not a matter. और सिर्फ चर्च जाना ही काफी नहीं। If you learn one Bible verse, it want to stay in your heart and it want to work in your heart and it want to practice in your life. अगर आप एक भी वचन पढ़ते हैं और उसे याद करते हैं, तो वो आपके जीवन में रहना चाहिए, वो आपके जीवन में कार्य करना चाहिए और आप उस पर चलने चाहिए। But right now what we are doing, लेकिन आजकल हम क्या करते we हैं? are hearing, हम सुनते हैं, but we are not practicing our life. लेकिन हम उस पर चलते नहीं। That's why we are facing the problem. और इसीलिए हम परेशानियां देखते हैं। So my dear family, मेरे प्रिय परिवार, whatever the words you are hearing from the God, you want to practice in your life. आप जो कुछ भी परमेश्वर के वचन से सुनते हैं, आपको उस पर चलने की आवश्यकता If you है। not practice, you will be the foolish builder. अगर आप उस पर नहीं चलेंगे तो आप एक निर्बुद्धि मनुष्य के समान होंगे। The wise man and the foolish man. एक बुद्धिमान मनुष्य और एक निर्बुद्धि The मनुष्य। wise man built the home in the rock, और जो बुद्धिमान मनुष्य था उसने अपना घर चट्टान but the पर foolish बनाया। man built the home in the sand. लेकिन जो निर्बुद्धि मनुष्य था उसने अपना घर बालू पर बनाया। What happened? क्या हुआ? Who built the home in the sand? It was fell down when the rain, when the wind, when the stream rose against him. और जिस व्यक्ति ने अपना घर बालू पर बनाया, तो उसके साथ क्या होता है कि जब बारिश आती है, आंधी आती है, तो उसका घर गिर जाता है। My dear family, मेरे प्रिय परिवार, where is your house? आपका घर कहाँ है? Your house is in the rock or your house in the sand? आपका घर चट्टान पर है या आपका घर बालू पर है? Where are you wise or you're foolish? क्या आप बुद्धिमान हैं या आप निर्बुद्धि हैं? Where are you? आप कहाँ हैं? Think in your life. इस बारे में सोचें। If your house in the sand, it will never stand there. अगर आपका घर बालू पर बना होगा तो वो कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। Build your house in the rock. अपना घर चट्टान पर बनाएं। Build your house in the rock. अपना घर चट्टान पर। That's the only way to change your life. और यही एक तरीका है जिससे आप अपना जीवन बदल। Today you want to think, how is my spiritual life? और आज आपको ये सोचने की आवश्यकता है कि आपका आत्मिक जीवन How कैसा is है? my family? मेरा परिवार कैसा How है? is my prayer family life? और मेरे पारिवारिक प्रार्थना का जीवन How is कैसा my है? personal life? और मेरा व्यक्तिगत जीवन How कैसा much है? I love the Jesus? और मैं कितना यीशु का अनुमति How देता much I हूँ? obey to the God? कितना मैं उसके पीछे चलता हूँ? How much I holy for my और God? कितना मैं इसके लिए पवित्र हूँ? And what I'm doing right now? और मैं भी क्या कर रहा हूँ? Think in your life. अपने जीवन में सोचें। If there is anything you are doing like a foolish way, change your life right now. अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ भी है जो आप एक निर्बुद्धि मनुष्य के समान कर रहे हैं, Be- तो अपने जीवन को बदलें। Because your house won't build in the rock. क्योंकि आपके घर को जो है वो चट्टान पर बनना है। What the Bible और says. वचन क्या कहता है? Turn to the Ephesians chapter और इफिसियों की पत्री में आएंगे। 6. इफिसियों 6 अध्याय The verse 10 says, और उसका 10वां पद कहता है, finally be strong in the Lord and his mighty power. इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव
प्रभाव में बलवंत बनो। Hallelujah. हालेलुया। What the Bible says? और वचन क्या कहता है? Ephesians 6, the verse 10 says, और इफिसियों 6:10 कहता है, finally, be strong in the Lord इसलिए प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत and in his mighty power. और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। My dear family, मेरे प्रिय परिवार, strong in the Lord. परमेश्वर में पवित्र बनो Build your family in the rock in the Jesus Christ. और अपने परिवार को चट्टान पर And बनाइए। God will change everything in your और life. परमेश्वर आपके जीवन में